السلام علیکم۔ علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا عبداللطیف ثقافی صاحب۔ ہاں جناب فرمائیے، آپ کہاں سے فرما رہے ہیں؟ میں سروج ضلع ودیشہ مدھیہ پردیش سے بول رہا ہوں حضرت۔ ہاں جناب، آپ نے کیسے زحمت میں کیا؟ یہ فرمائیے۔ رد کر رہا ہوں کہ شک شبات کچھ اشکال ہے حضرت، دور ہو جائے، تھوڑا عوام کو فائدہ بھی ہو جائے، لوگ سن لیں تو۔ جیسے اچھا جناب۔ آپ تو جامع ثقافت سے پڑھے ہیں جی جناب، تو سید صاحب کے مرید ہیں آپ؟ بلگرام شریف سے ویسمیہ صاحب کے؟ میں ان کا نام تو سنا تھا، میں تو ابھی تمری تو اظہری میاں کا بھی ہے، شیخ ابوبکر صاحب کا بھی ہے۔ ابھی کہاں ہیں آپ حضرت؟ میں یہاں اتراکھنڈ ہیں، کچھا میں ہوں۔ کچھا میں؟ اچھا حضرت، یہ پوچھنا چاہ رہے تھے ہاں کہ جیسے حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، کیا یہ حدیث صحیح حدیث میں شمار ہے؟ ہاں، یہ صحیح ہے، امام مسلم نے بھی روایت کیا اور بھی اس کو روایت ایک صاحب نے خبر واحد قرار دی تھے کہ خبر واحد بھی بہت سے علماء مانتے خبر واحد ہے۔ نہیں، یہ خبر واحد نہیں ہے، یہ بہت سارے روایتوں میں ہے، متعدد ترکوں سے آئے ہوئے روایت ہے یہ۔ اچھا، متعدد۔ ہاں اب اس میں کسی فرقے کا نام نہیں ہے، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ نام لے لے کے جہنمی بناتے ہیں، ہاں ہاں تو ہاں۔ یہ تو صحیح نہیں ہے نا صاحب، نام لے لے کے جہنمی بنانا کسی کو۔ کسی کے نام میں جہنمی نہیں، لیکن وہ پاتھ دیکھنا پڑے گا، وہ راستہ کیا ہے، ہمارے بزرگان دین کے راستے میں ہی ہے یا انہیں توہین کرتے وہ دیکھا جانا چاہیے۔ توہین تو جو کرے گا وہ تو کافر ہے، ہاں ہاں، لیکن وہی بغیر بات ہے۔ بغیر بغیر دیکھے بہت سے ایک دم دیوبند والوں کو نام لے کے جہنمی بناتے ہیں، ندوے والوں کو جہنمی بناتے ہیں۔ دیکھیے، دیوبندی والوں کا مسئلہ یہ ہے، ان سے ظاہر کلم کفر ثابت علماء نے کر رکھا ہے نا، تو اس میں ہم جیسے لوگ بتا نہیں سکتے نا۔ اب کیا کیا کفر ہے ان کے دیوبندیوں کے، جیسے جو ظاہر میں کرتے ہیں؟ دیوبندیوں کا کفر سب سے بڑی ہے نا، اس کا کفر کا جڑ توہین رسالت ہے، وہ اسماعیل شہید ہے۔ وہ تو کتابوں میں ہے نا، کتابوں میں ہے۔ وہ اسماعیل دہلوی نے وہ اقتدا جو کیا ہے، عبد الوہاب کا اقتدا کیا ہے، ابن عبد الوہاب کا۔ ہاں، ابن عبد الوہاب بالکل مرتد لال مضل آدمی ہے۔ وہ تو شیخ حسین احمد مدنی صاحب نے بھی کتاب لکھی تھی ان کے خلاف۔ ہاں، وہ لالو مضل والا آدمی ہے، ان کے بارے میں ہم شافعی نے بولو شیطان کا فرقہ ہے، اور علامہ ابن العابدین میں بولے یہ لال فرقہ ہے، یہ خوارج کا فرقہ ہے، مسلمان کو کافر بنایا۔ یہی کام اسماعیل دہلوی نے بھی کیا تھا۔ اچھا 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 اچھا۔ یہاں کے سارے جو پرانے زمانے میں جو رسم و رواجوں میں سنیت کا رسم مداروں پہ جانے والے کو سب کو بولے ایک بدھ پوجا کرنے والے ہیں، آپ یہ پوجا چھوڑیے، مدار پر نہ جائیے، اور ان سے کسی کو نہ مانو، اللہ کو مانو اور اللہ کو ہی مانو اور کسی کو نہ مانو۔ قرآن صاحب بتا رکھا ہے۔ مفتی اعظم ہند نے بھی یہ کہا تھا، تطہیر صاحب بتا رہے ہوں گے کہیں پر، کہ کیا میں مروں گا تو میرا بھی عرس ہوگا؟ مطلب عرسوں کی یہ تعداد دیکھ کر وہ غصہ ہوئے کہ یہ کیا عرس، جو مر رہا اس کا عرس، جو مر رہا اس کا۔ ارے آج دیکھ لو آپ، جو پیر مر رہا ہے، جو عالم مر رہا ہے اس کا عرس شروع، اس میں فائدہ کیا ہو رہا تھا؟ عورتیں آ رہی ہیں، لڑکیاں آ رہی ہیں، بے پردگیاں ہو رہی ہیں، تو اس لیے ایسے حالات دیکھ کے لکھا ہوگا کچھ۔ ہاں جناب، دیکھیے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہم وہ نہیں کہتے کوئی عرس منانے کو راضی کرے ناراضی کرے، عرس بزرگان دین کے یادگاری کرنا یہ قرآن و حدیث کا تقاضا نہیں ہے تو صحیح، لیکن یہ جو لڑکیاں آ رہی ہیں عرسوں میں، یہ کیا ہے؟ تو یہی چیز منع کیجیے نا، یہ تو تو یہی آج تو اعلیٰ نے بھی حرام لکھا ہے نا، عورت کا لیڈیز کا مزار پہ جانا حالت میں حرام لکھا ہے کہ لعنت پڑے گی۔ لیکن آج یہ سب کنٹرول کہاں؟ پورے ہندوستان میں جاؤ تو مزار عورتوں سے بھرے ملیں گے، لڑکیوں سے بھرے ملیں گے۔ یہ ہمارا میٹر یہ نہیں ہے نا، ایک آدمی کو کفر کرنے کا میٹر یہ نہیں ہے نا، کوئی بھی کام اب اعلیٰ حضرت نے بھی تو حرام لکھا ہے نا عورت کا جانا۔ ٹھیک ہے، میں یہ مان لیجیے آپ، اگر یہ عورتوں کی وجہ سے وہ غلط کر رہی ہے، انہیں روکا جانے والا سلسلہ آج بھی چل رہا ہے۔ کون روک رہا ہے صاحب؟ بہرائچ میں چلے جا، سید سالار مسعود غازی کی درگاہ عورتوں سے بھری ہے، آپ کلیہ شہید چلے جا، عورتوں سے بھری ہے۔ کوئی سا مزار بتاؤ کہ جہاں نہیں ملے گی، کم ایک دو مزار ملیں گے جہاں نہیں ملیں گی، ورنہ عام طور سے 99% مزاروں پہ عورتیں ہیں۔ اے جناب، آپ یہ فرمائیے کہ کوئی عورتیں کوئی بے کنٹرول کچھ غلط کام ارے تو کیا اتنی بے کنٹرولی کہ ہندوستان کا ہر مزار عورتوں سے بھرا پڑا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسجد کے پاس سے جوتا چوری گئے تو ہم نماز پڑھنے ہی چھوڑ دیں، ہم نماز پہ ہی اگر شرک کر دیں۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا تو جوتے نہیں چورائی ہوتے عام طور سے جتنا مزاروں پہ عورتیں آ رہی ہیں عام طور سے۔ ہاں، آپ بھی دیکھ رہا ہوں گے مزاروں پہ عام طور سے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنی جوان لیڈیز آ رہی ہیں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی غلط حرکت ہوتے تو جوتا چوری بند کریے نا، عورتیں آنے بند کرنے کے اب جیسے اجمیر شریف میں ہم بھی جاتے ہیں، اجمیر شریف
वहाँ लेडीज और मर्द एक साथ चलते हैं, क्या ये जायज है? फिर कोई जायज बताएगा? तो ये जायज और नाजायज हम बताने वाले चलने वाला मसला हो तो ये बताइए ना, बस इससे आगे क्यों पढ़ रहे हैं दीन में? ये तो हमारा हक नहीं है ना। वो बहुत से सजदा भी करते हैं, बहुत से जायज सजदा भी करते हैं, हालत में हराम लिखा है सजदे को। इसे बंद कीजिए ना, इससे आगे क्यों करते हैं? इससे कुफर बोलेंगे, शिरक क्यों बोलेंगे? हाँ, ये तो हाँ, हराम है, हाँ बिल्कुल हराम है, बस इतने ही कहिए ना। हाँ, इसका आगे बिल्कुल। बोल के ये शिरक है, बुद्ध पूजा है, ये सब कुफर है ना। हाँ यही कुफर है। कुफर ही तो इन्होंने करा, ये भी तो इन्हें कुफर करार दे दिया देवबंदियों को। हाँ हाँ बिल्कुल। बस अब वो यही बात गलती है, जैसे अब किसी देवबंदी ने कोई ने भी लिखा होगा, तो जैसे ये गलत लिखा है उसने कि अंबिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, ना, वो उनके मेरे साथ पास है, शब्बाशी करते हैं, ये लिखा है तो मेरे गलत लिखा है जिसने भी लिखा है। हाँ, बस यही कुफरियात तकवीयत इल्मान मेरे पास है, कुफरियात लिखा भरी पड़ी है। हाँ, और इसी तरह फाजिल शरारत बरेलवी ने ये मेरे कहा पास, था कि मैं उन्हें काफिर नहीं कहूंगा, उन्होंने तौबा कर ली थी, वो मुझ तक आ गई है। नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा। आप वो आगे नहीं पढ़ा। उन्होंने अपने किताब में कहा था, जब तक हमें यकीन नहीं मिला तो हम उन्हें कुफर नहीं बोला था, लेकिन हमें वाजी हो गया है दोपहर की सूरज की तरह, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है तो हम कुफर बोला है। आला हजरत ने अपने तो किताबों में मलफूज में तो ये है कि मैं उन्हें काफिर नहीं किया था इस्माइल दहलवी क्या? को। मलफूज में तो ये लिखा है। ये देखिए, आप कहीं ना कहीं आधे पढ़े होंगे, लेकिन उनकी किताब में फतावा रज़विया में साफ इस सिलसिले पर एक बड़ी रिसाले में वजाहत साफ कर रखा है जनाब। अच्छा, वजाहत साफ कर दी। तो ये भी ये कुफरिया में आएगी क्या? अंबिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनकी साथ शब्बाशी, ये कैसी है? मेरे समझ में नहीं आया आप क्या फरमा। ये लिखा है एक साहब ने, देवबंदी मेवबंदी जो भी हो, कि अंबिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं बीवियों के साथ। अब देखिए, ये लफ्ज के बारे में अभी मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी सदहान नहीं, ये मुझे तो गुस्ताखी लग रहा है, गुस्ताखी में आ गया ना ये भी। ये हाँ, ये तो मैंने अभी है ना, मैं भी इस अल्फाजों के अंदर से अभी चलूंगा तो फिर जरूर वैसे ही कुछ है, लेकिन मैं ये सुनते हुए कुछ नहीं बोल सकता नहीं, जब तक मैं ये अपने इन लोगों ने मुशाहदत क्या जवाब सही नहीं दे पाया। मेरी बहस हुई कि ना वो अंबिया किराम की जिंदगी मकसूद है, अंबिया जिंदा है, तो ये जिंदगी के लिए तो कुरान की आयत है ना, कुतलू फी सबिलिल्लाह था, शहीद जिंदा है तो नबी तो बदल जाऊला जिंदा है। ये लिखने की क्या जरूरत थी कि अंबिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, उनकी साथ शब्बाशी करती हैं? वो और भी लिखा हुआ है, इस्माइल दहलवी ने ये भी लिखा है, वो मर चुका है, मैं मर चुका हूँ, हुजूर का नाम में लिखा है, तकरीर इमाम मेरे पास है। नहीं, ये भी बहुत बेहुदा रिवाज है ना, तो अंबिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं। अब बिल्कुल ये सब जहालत, ये ऐसे अवबाजी लोग हैं, इनकी प्लान ही अवबाजी करना। और अब बताओ, ये यहाँ तमाम हुकूमतें नबियों की करने। बीवियों को किसने देखा जब साहबा ने देखा? ऐसे कैसे लिख रहा है कि अंबिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं? ये ऐसे ही लोग हैं, अब्दुल वहाब का दीन वाले, ये बिल्कुल यहाँ अपने नहीं, हजरत जैसे वो जवाब ये देते हैं कि जिंदगी मकसूद है और ऐसा लिखा इसलिए लिखा, तो क्या उनका जवाब सही माना जाए कि गलत माना जाए? इस बारे में ये सब गलती, तो ये सही कोई नीयत पर नहीं लिखते, इनका सब कुछ गलती। नहीं, ये वाली रिवायत के बारे में अंबिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, ये सब गलत लिखा है। अगर लिखा हो तो बिल्कुल तौहीन आमेज है ये। तो ये तौबा करना चाहिए ना, फिर कलमा पढ़ना चाहिए। तो ये सब कलिमा पढ़ने के, ये तो अंबिया कराम का तौहीन है, सब कलिमा तो तो पढ़ ये आपने कही, आज आपने की तौहीन वाली बात। ऐसे आलिम होने चाहिए आप जैसे आलिम। हकीकत है, मैं भी तौहीन मानता हूँ कि बिल्कुल तौहीन है। क्या कैसी तुम जवाब दे दो उल्टे सीधे करके, तावीले करके हजरत साहब? आप बिल्कुल सही फरमा रहे, आप बात सच है। अब ऐसे तो उल्टी सीधे हर कुछ तावीले कर लो कि वो जन्नत में भी तो औरतें साथ में रहेंगी, तो अरे भाई जन्नत की बात अलग है, कब्रों की बात अलग है। कब्रों में के बाद तो वो करके वो तौहीन करने वाले, इनकी सदहान लफ्ज़ जनाब, मैंने खुद इसी की रिसर्च करने वाला आदमी। अरे हजरत, एक ने तो ये तक लिख दिया अहले हदीस था। कौन था अहले कुरान? ले जाने कौन है वो भी यही वाला। नहीं, वो अहले हदीस नहीं, वो कोई वो अहले सुन्नत भी दावे करते हैं ना, ये अपने अपने सब लोग ये भी तो दावे करते हैं मैं अहले सुन्नत। एक साहब ने ऐसा लिख दिया कि कब्र में शैतान बहकाने आता मरने के बाद। क्या ऐसी कोई रिवायत है साहब? क्या कह रहे अरे ये अहले हदीस भी बड़े कम वक्त होते हैं। एक ने लिख दिया नहीं, ये लिख दिया नहीं, ये लिख दिया फैलाने वाले होते हैं अहले हदीस। नहीं, ये लिख दिया उसने का सीधा रास्ता है अहले हदीस। नहीं, ये लिख दिया उसने कि कब्र में शैतान बहकाने आएगा मरने के बाद। क्या कोई ऐसी रिवायत है साहब? शैतान बहकाने आएगा मरने के बाद कब्र के अंदर? यार ये क्या यार, वहाँ बहकाना के क्या काम कर रहे हैं? बताइए, कैसी कैसी खोपड़ियां हैं इन लोगों की। बस यही है जनाब। तो आपने भी तो पढ़ा होगा जामे सकाफा में, किसी हदीस में है कहीं जिक्र के मरने के बाद शैतान बहकाने आएगा? कुछ भी नहीं, सब वही आते, ये इन्हीं
मजहब में, इस्लाम में नहीं। अच्छा, ये रिवायत को मौजू माना जाए जो कहता है कि साहब है लिखा है कब्र में शैतान आता है, कहीं है? ये तो बिल्कुल मौजू ही है, बहुत किसी ने बनावटी है। इस हदीस के मुस्तंद सिहाओं में हमने कभी नहीं पढ़ा, हमने सिहा पढ़ के ही तो बैठे हैं। अच्छा, कहीं नहीं है कि कब्र में शैतान आता है बेकाने? कब्र में कहाँ शैतान भड़काने आते ही नहीं, ये सब मौत के करीब आने के बारे में रिवायत में। हाँ, बस सांस मरने तक है, सांस तक, जब तक सांस चले ही आएगा। सांस निकलने के बाद थोड़ी कब्र में आएगा सांस। नहीं जनाब। अरे ये इदरीस साजिदेड़ा कोठा में रहता है, ये इस बात को मानता है। इदरीस एक रामपुर का सुलकुल्ली है वो भी। अच्छा, अहले हदीस से भी चंदा ले ले, वो ये इस बात का अकीदा रखता है कि कब्र में शैतान आता है। मैंने उससे खूब ललका, खूब फटकारा उसको। सही करा जनाब, सही करा ना मैंने, कि दोबारा उसे कलमा पढ़ना चाहिए और निकाह करना चाहिए। आप बढ़िया काम किया। नहीं, उससे दोबारा निकाह करना चाहिए ना, ये अगर अकीदा रखता है कि कब्र में शैतान आता है। हाँ, इस तरह की बातें करेंगे तो वही आते हैं, वही आते। वो इदरीस साजिदेड़ा में है, एक मुफ्ती शहजाद हैं, ये इंदौर में हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, वो भी यही अकीदा रखते हैं। अच्छा, मुफ्ती शहजाद हैं। और एक ये कमल कहाँ से हजरत मुफ्ती बन के जाते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इन्हें ये नहीं पता कि कब्र में शैतान आता ही नहीं और शैतान का अकीदा रखे बैठे हैं। अरे बताओ क्या क्या ड्रामा करते हैं। क्या क्या ये जो है उसको काट देते हैं, जो नहीं है वो बना। अब आपने खुद से आज सित्ता पढ़ी, आप कह रहे हमने सारी हदीसें पढ़ी, किसी भी हदीस में लेकिन नहीं कि कब्र में शैतान देखा नहीं आता। कब्र में शैतान किसी को भड़काना नहीं आता है। इन्हीं ये खुद ही ऐसी ही है, उल्टी सीधी रिवायत लिख देते हैं साहब। बस ऐसे ही, जब तो ये इनकी फिरका ही हम मानने के दूर रखते ही है। अरे साहब, मैं तो समझ में नहीं आता ये अहले हदीस क्या करेंगे, अहले कुरान क्या करेंगे, कहाँ। और एक है, उसने अपने बाल को बाल मुबारक के बढ़वा दिया, वो इलियास कादरी ने। वो इलियास कादरी जो है, उसने अपने बाल को बाल मुबारक के बढ़वा दिया लोगों में। अब उनके बारे में मुझे नहीं पता, उनके बारे में मुझे तो अच्छे ही ख्याल है, क्योंकि वो अहले सुन्नत के लिए अच्छा काम नहीं कर तो रहते, लेकिन बाल मुबारक के बढ़वाया, जब से अपना मीलाद पढ़वाया। उनका अगर मुबारक के लिए कोई लिया होगा तो हम इसे बुरा करने की जरूरत नहीं। सालिह नेक लोगों से ताल्लुक रखने वाली चीज को अल्लाह बेशुमार बरकत तो देगा। नहीं, बाल तो अल्लाह के रसूल के ही बाल को बाल मुबारक कहा जाता है। ऐसा नहीं, बाल मुबारक का है ना, कोई भी जिस्म के हिस्सा मुबारक तभी होते हैं मुबारक से ताल्लुक हो। मुबारक हुजूर से लेकर हुजूर से ताल्लुक रखने वाला हजारों लोग मुबारक हो सकते हैं। हुजूर का औलाद आले मुबारक अगर नेक होगा तो वो भी मुबारक हो सकते हैं। उनके भी जिस्म छुआ हुआ सामान मुबारक हो सकते हैं, उनके बाल भी मुबारक हो सकते हैं। सारे सरापा मुबारक है, जो मुतबर्रक लोगों का सरापा मुबारक है। अगर वो तकसीम खुद करे या करे, इसमें बुराई की कोई बात नहीं जनाब। जो बात है हकीकत ही हम बता देंगे। कमरुज़्ज़मा आज़मी साहब ने वो कौल कहा था कि मीलाद सिर्फ अल्लाह के रसूल के लिए बोला जाता है। मीलाद गलत, यानी अल्लाह के रसूल के मीलाद शरीफ को मीलाद कहा जाता है। किसी और के लफ्ज के मीलाद को मीलाद नहीं कहेंगे किसी इंसान के। तो इसने क्या है, अपना मीलाद भी पढ़वा लिया था इलियास कादरी ने। ये सब बातें देखिए आप जो फरमा रहे हैं, ये मुझे लग रहा है आजकल तो हम लोग आपस में बहुत इख्तिलाफ करते हैं। अरे साहब, अब बताइए, वो मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी पर कुफ्र का फतवा लगा दिया, जो मुफ्ती आजम के खलीफा थे ना नागपुर में। ये देखिए, ये सब फतवे जो अहले सुन्नत और अल्लामा ताहिर कादरी जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं सुन्नियों का, उनके ऊपर भी कुफ्र का फतवा। अरे भाई, ये सब बातें जो है ना, हम जल्दीबाजी करते हैं, इस्लाम बिल्कुल इसको पसंद नहीं करता। अरे आप जैसे काबिल आलिम होने चाहिए दुनिया में, मैं तो कह रहा हूँ, आप जैसे अगर पहुंच जाएंगे इंकलाब आ जाएगा। देखिए हमारे उलमा लोग, शेख अबू बकर साहब जैसे लोगों का नजरिया आता है, अहले सुन्नत वल जमात का कोई उलमा आपका आपस में इख्तलाफ लेकर काफिर नहीं करते। ये तो वहाँ भी अकीदे की वजह से देवबंदी को हमने काफिर बोले, इसके अलावा किसी को काफिर। अच्छा, जामे सकाफा वाले जो है ऊंचा पजामा पहनते हैं, क्या वो माने जाते हैं लोग, उनको वहाँ भी समझते हैं शक में? ना वो पाजामा ऊपर पहनते ही नहीं, वो लोग तो जुब्बे पहनते और तहबंद पहनते। हम लोग तहबंद ऊंचा पहनते ना, बहुत ऊंचा पहनते वो। तहबंद पहनते, उसमें ऊंचे भी पहनते, थोड़ा अच्छी बात है, तो सुन्नत है साहब। अब वहाँ अरब के लोग भी आते हैं, अरब वो भी जाते हैं, तो थोड़ी क्यों देवबंदी होगा। शेख अबू बकर साहब अरब में जाते हैं। शेख अबू बकर साहब आला हजरत के बड़े परचम लहराने वाला जमाने में सबसे बड़ा, देवबंदी से भी बड़ा 10 गुना बड़ा इदारा है उनका, बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा है। 10,000 लड़के पढ़ते हैं कि 15,000? 15, 20, 25,000 तक बच्चे हैं उसमें, 10-15,000 तैर के भी पढ़ते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, जैसे ये अल्लामा ताहिर कादरी साहब हैं, ये भी तो अहले सुन्नत है साहब पक्के? हाँ, वो अहले सुन्नत के थोड़ा बहुत लग्जिश हर इंसान से होते हैं, मुझसे भी, आपसे भी, सबसे भी। जिससे भी लग्जिश हो गया फौरन उसे कुफर देने की जरूरत नहीं। ये नहीं, अपन तो यही माने कि हाँ ताहिर कादरी साहब मोमिन है। क्यों मोमिन के? जब तक कलीमा पढ़ने वाले से कुफर इतने वाज़ी नहीं होगा तो ये कुफर 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 बोलना भी तो ये कुफर है। हाँ, जैसे मैं तो यही मानता हूँ ताहिर कादरी साहब मोमिन है, सुन्नी है।
हाँ अच्छा, एक सुन्नी से अकीदा वाले हैं, थोड़ा बहुत गड़बड़ हर किसी आलिम से होते हैं। हाँ। 2 मस्जिद होते हैं, 2 मस्जिद के इमाम में भी कोई ना कोई गड़बड़ अरे होते हैं। क्या बात, आप जैसे आलिम होने चाहिए। यही तो लोग बात बात में तारो काजी को काफिर बना देते हैं, कहीं किसी को बना देते हैं। अरे क्या है साले, तुम लोगों के पास इसके अलावा कुछ है भी कि नहीं है? ये सब गलत बात है। देखिए सुन्नी उलमाओं का, चाहे इलियासुल कादरी हो, ताहिरुल कादरी हो, अरे कोई अहले भी हो, सुन्नत का कोई भी आलिम के बारे में इस तरह बोलना, ये कीना कपट वाले मौलवी लोगों कर रखा है। अरे लेकिन ये साहब सब गलत बात है। अहले सुन्नत को हम नुकसान कर रहे हैं और सुन्नत मोहम्मदी को हम काट रहे हैं, ये देवबंदी देखो, को बढ़ावा देने के एक रास्ता बना रहे हैं। अरे देखो सब में कुछ ना कुछ, आपने जैसे बताया जामिया धर्म में जाते हैं, जामिया धर्म में भी सब देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस सब साथ ही तो पढ़ते हैं साहब। हम तो देखिए साथ पढ़ने में मजबूरी जगह में पढ़ना पड़ते, इदारा हमारा नहीं। लेकिन देवबंदी का अकीदे में बिल्कुल हम लोग जो है ना ताल्लुक है, इसलिए कि वो लोग अपने अकीदे से और कलीमा पढ़ा नहीं है। अब्दुल वहाब का ही अकीदा आज भी वो फैलाते हैं। हैं? अब्दुल वहाब का अकीदे को बताते हैं, ये अहले सुन्नत वल जमात है, इसलिए हम उनके साथ आई नहीं। उन्हें अच्छा, बिल्कुल जैसे ये ऐसे ये हरम शरीफ के इमाम हैं, इनके बारे में क्या अकीदा रखा जाए? ये तो कट्टर सुन्नी है। हरम शरीफ के इमाम अगर कुल्लम कुल्ले वहाबी अकीदा रखने वाला होगा तो वहाबी से तो लाताल्लुक होना चाहिए। नहीं, शेख अबू बकर साहब क्या अकीदा रखते हैं इमाम हरम उनके शरीफ? भी यही अकीदा है हरम शरीफ के इमाम के बारे में। क्या? कुल्लम कुल्ला वहाबियत वाला होगा तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, वैसे ऐसा तो नहीं है। जैसे लोग पढ़ लेते हैं नमाज आमतौर से। अब जो नमाज देखिए, अगर आपको कोई कानूनी परेशानी होगा तो यहाँ अभी आपका मस्जिद में भी पढ़ना आपको जायज है। कोई हुकूमत ने ऑर्डर दे दिया कई देवबंदी के पीछे पढ़ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपका पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आप मजबूरी है। इसी तरह सऊदी अरेबिया में पहुंच गए, कोई अंदेशा हो इसके पीछे नहीं पड़ेगा, तब तो पढ़ना आपको मजबूरी है, कोई बात नहीं। बस यही बात हो सकती है। हाँ, पढ़ सकते हैं जमात से नमाज में इमाम हरम शरीफ। ऐसे वक्त में मजबूरी है, और कानून दीन ही थोड़ी है वो, तो इसीलिए कि हुकूमत के बारे में डर है। अरे डर भी है, फिर उनसे अपन बात ही नहीं की इमामों से, तो कैसे काफिर मान ले? इमामों से अरबी में बात करेंगे। अगर वो तकरीर करते हो साफ वाजी किया है वहाबी अकीदा, तब तो समझ में आ गया बात। समझ में आएगी ना। वो तो खुतबा, बेहतरीन खुतबा पढ़ते हैं और अल्लाह के रसूल का नाम भी अदब से लेते हैं वो लोग, इमाम वहाँ के। मैं गया था ना उम्रे में, तो बड़े अदब। मैं थोड़ा एक मीटिंग में बैठा हुआ, तो मैंने बहुत अच्छा साहब आपने समझा दिया। आपसे गुफ्तगू मैं बता दूंगा कि हजरत ने ये बताया है, यही अकीदा रखो जो आपने बताया, ये आवाम तक पहुंचा दूंगा। ठीक है सर? ठीक है, कोई बात नहीं, अकीदा जो है सही। अच्छा, यहाँ से एक और बता दें, तर्जुमे पर तो काफी नहीं कहा जाएगा ना, किसी ने जाहिरी तर्जुमा कर दिया पूरे पता है ना। अभी मैं मीटिंग के बाद तफसील से बात करेंगे। अच्छा ठीक है, फिर तफसील से बात करेंगे।